So we are continuing from the last class. Here last day we have given you the fundamental principle of counting without repetition wala cases. So now we are going to take some problems. पहले कुछ problems कर लेते हैं, concept को fluent बना लेते हैं, then we'll be trying to go for some very important problems. अभी basic problems से शुरू करेंगे so that our flow will be smooth, right? And I might be like doing it in this way कि statements कम लिखूं मैं, right? I might write less number of statements because now you will be able to write the statements gradually. ठीक है? So here is the first problem. How many 5-digit number can be formed which are divisible by 2 if I'll consider two cases. Digits are not repeated. First case, and then second case, digits are repeated. Right, repeated. So both the cases are different, and we have to tackle both the cases in a different way. Just try to see how we'll proceed for answering this. Okay? In both the cases, you have to first talk about the structure of the 5-digit number. Right? First, let us try to see. And now here you try to see. They are asking you to find the 5-digit numbers. So obviously they are not talking about the digits. They are all the digits of the decimal system that are 0 to 10, 0 to 9. So let us write those first, right? Here the digits in the decimal system are write the digits right from 0. You may write all. I am writing all. Right? These are the digits. Total number of digits is total number of digits is equal to 10. So there are 10 digits, right? So now you talk about the form of the number. Any 5 digits number is of the form, whatever form it will be. So we are giving places. So this is a 1 place, then 2 places, 3 places, 4 places, 5 places, right? These are the 5 places for each of the digits. Okay, each of the digits. So you can write this as, now it is better if you write it is in the power of 10, right? So it will be easy for you to write it, so the space will be less. So this will be power of 10, right? 10 to the power 4 it will be. Then I'll be writing this as 10 to the power 3. Then this will be 10 to the power 2, and then this is 10, and this is 1's place, right? So these places I am going to write it like this. Just you hold on. I'll be writing it like this. So these are the places. It is, oh sorry, these are not exactly fitting each other. Just hold on for 1 second. So it must match the places, otherwise what will happen? It will be not giving you a good shape. Okay, fine. This is good. So now here it is 10's place, 1's place, 10's place. Then this is 10 square place, 10's cube place, 10 to the power 4 place. I am writing like this. I did not write it as 100 or 10 or like this. Okay. So any number will be of the form. Any number of 5 digit will be of this form. Now you try to tackle the cases separately. This is the main part where you have to be very like clever, or I must say that you should be very analytic. First of all, digits are not repeated. Digits are not repeated, but numbers should be divisible by 2. So in two different cases, it will be divisible. If you keep 0 at the end, then also it will be divisible by 2.
and if you can keep any other non-zero even digits, then also it will be divisible by 2, right? Problem is starting because of non-repetition of the digits, right? So we'll have a case, right? Two different cases. So case one, you just see what is the case one, right? Case one, we'll discuss case one. If 0 is at the end, that is in ones place, right? वंस प्लेस, अगर जीरो वंस प्लेस में है तो कैसे फिलअप करेंगे, राइट? हमने जीरो को वंस प्लेस में फिक्स कर दिया, तो हमारे लिए बचा है कितना प्लेस यहाँ पे टिकना, 1 2 3 4 4 प्लेसेस, तो जीरो तो यहाँ आ गया, अब इनमें कहीं जीरो नहीं आएगा, तो तुम्हारे हाथ में बचेगा 10 में से कितना डिजिट, 9 डिजिट, तो यहाँ 9 वेज में होगा, यहाँ 8 वेज में, यहाँ 7 वेज में, यहाँ पे 6 ways में, because repetition is not allowed. So you write as repetition is not allowed in this case, right? Repetition is not allowed. So tens place, right? Tens place can be filled up in how many ways? 9 ways, right? 9 ways. We can fill tens place in 9 ways. Okay, very fine. Then 10 squares place, I'll write a square just little after. 10 squares place can be filled up in 8 ways, and then 10 cube place can be filled up in place can be filled up in how many ways? 7 ways, and then last one 10 to the power 4 place, right? Can be filled, sorry, I am doing some mistake. Can be filled up in 6 ways, right? 6 ways. So be very, very clear. Now you can apply FPC. So please write the powers here, 2, then 3, then 6. So now if you apply FPC, what will happen? Total number of numbers will be 9 into 8 into 7 into 6. So total number of numbers is equal to 9 into 8 into 7 into 6. So how much will that be? It is 72 into 42. 72 into 42. So I am doing that calculation also. 72 into 42 will give you 2 2s are 4, then 8 and 14, 22, 2, then 28, 3. Just check it please. 3024 according to my calculation. It is the case. So now case number 2. Case number 2, right? If non-zero, right? Non-zero digits are at the ones place. अगर नॉन जीरो डिजिट वंस प्लेस में होगा तो ध्यान से देखना, तुम्हारे पास अभी जीरो बचा हुआ है और वो जीरो को 10 to the power 4 का प्लेस में नहीं आना चाहिए. बी केयरफुल अबाउट दैट. सो यू राइट as repetition is not occurring, repetition is not allowed, right? Not allowed. So this time we'll start with 10 to the power 4 place first, because that is a problematic one, right? Place can be filled up in how many ways? 8 ways this time, because you are having 0 with you, which you cannot use. Already one digit you have used in the units place, so that also you have to exclude, right? And then this place can be filled up by in how many ways? Again 8 ways. Why 8 ways? Because already 2 digits you have used so far and 0 can be there, right? Place can be filled up in
How many ways? 7 ways, right? Now what place is there? 10 to the power 4, 10 cube, 10 square, and then last is tens place. Can be filled up in 6 ways, right? So please see the differences. There is a small difference with the previous ones. That's the difference you have to take care here. So it is 10 to the power 4 place, 10 to the power 3 place, 10 square place, and 10 place. So total number of numbers will be how much? Multiply this, right? So total number of numbers is equal to how much? It is 8 into 8 into 7 into 6. So that you count 64 into 42. 64 into 42. So that will give you 8 here. Then 12 plus 16, 28. 8 here. Then 24 plus 2, 26. According to my question, I got this. So now you see both the cases are independent of each other. So total number will be added, right, in order to get the aggregate total numbers, right? So grand total number of 5 digits number which are divisible by, right, divisible by 2 is कितना होगा? Equal to ऊपर क्या मिला था? What was the result at the top? It was 3024. So it is 3024 plus 2688. Please check the calculation, right? This calculation I am leaving for you to see the accuracy. It is 2 here, 8 plus 4, and then 2, it is 1 here, and then 6, it is 7 here, and then it is 5 here. Sir, Yes, sir, in the non-zero digit case, yes, sir, there are 4 possible non-zero digits, right, for yes, a even number. Sir, so the total number of numbers should be multiplied with 4, no? yes, exactly, exactly. You rightly pointed out. You rightly pointed out for that ones place. I missed it out, right? Thank you. I missed it out. One's place can be filled up in, very nice. Filled up in how many ways? 4 ways. Because there are 4 even non-zero digits. Great. Thank you so much. Thank you so much. That I missed out, to be honest. So we got this. So this whole thing will be multiplied by 4. So this will be also multiplied by 4. So we'll be having one different calculations here. So it will be 32, then 32 plus 3, 35, 24 plus 3, 27, 8 plus 2, 10, right? So please check the calculation if I did it correct. If I did it correct, so it is 10752, 10752, and then this will give you at the last 6, then it is 7, and then it is again 7, right? Then it is 3 and 1. So these many numbers will be there. Great. You have rightly pointed out that. Thank you so much. Thank you so much. Since the number is to be divisible by 2, so the units place, yeah, फिर ones place, better you write like this. Ones place should have an even digit. An even digit, right? So ones place can be filled up by, ones place can be filled up by, filled up in how many ways? How many even digits are there here? 0 will be included here, this one. So it will be 5 ways, right? So now you have to fill up the rest of the places, right? So rest of the places will be what? Next will be tens place.
यहाँ पे लिखो as the repetition is allowed, repetition is allowed, right? So tens place can be also directly filled up now. Tens place can be filled up in how many ways now? 10 ways, right? You can fill this by 10 ways. Why 10 ways? Because 0 can be also used here. Then tens squares place I'll be using, right? Tens place means hundreds place. So 10 squares place, hundreds place can be filled up in how many ways? Again 10 ways, because you can use the repeated digit here. So used one, right? So then tens cube place can be filled up in how many ways? Again 10 ways, right? And then 10 to the power 4 place, 10 to the power 4 place cannot be filled up by uh, 10 ways, right? It can be filled up by what? You can fill it up by 9 ways, because 0 cannot be used here. If you use 0, it will not be any more a 5 digit number. So this is very, very important thing to notice. So now total number of this will be what? It is 5 into 10 into 10 into 10 into 9. So that you write. So that will be giving you the total number of the numbers. Therefore, total number of numbers, 5 digit numbers, right, will be equal to 5 into 10 into 10 into 10 into 9, right? So that will be equal to how much? 45000, 45000. So that is the total number of numbers divisible by. So here is the next question for you, right? We'll be discussing this. यहाँ पे क्या बोला है? Find the number of words with or without meaning that can be formed by using 7 letters from English alphabet if the repetition is not allowed or repetition is allowed. So here again I would like to tell you, I'm not going to write these answers very formally, because now you are able to write the answer very quickly and clearly. So I'll write the symbolic answer. So any word with 7 letters will be of this form, right? There will be how many places? 7 places. So English alphabet has 26 letters in all. In the first case, repetition is allowed. So if you start filling the first place, then it can be filled up in 26 ways. Second place can be also filled up in 26 ways. The reason is that repetition is allowed. This place can be filled up in 26 ways. That means each of these places can be filled up in 26 ways. So in that way, total number of ways will be how many? Total number of words will be how many? 26 to the power 7. So this is the total number of words if repetition will be allowed. Now suppose that repetition is not allowed. If repetition is not allowed, then what will happen? First place can be filled up in how many ways? 26. So one letter, whatever you use in the first place, will not be used anymore. This will be 26, 24. Then third will be 24. Then one reduce 23, then 22, and then 20 and 20 ways. So total number of words will be how much? Total number of words will be equal to 26 into 25 into 24 into 23 into 22 into 21 into 20. So now this calculation I am not doing, I am leaving the calculation for you. So this is the question, right? This is the question. Please see this. So here you take the another question. This is very, very important question again. This is about the palindrome. So first of all, palindrome क्या है वो जानना चाहिए. अगर palindrome क्या है जानोगे तो इसको करने के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है. palindrome ऐसा है कि वो आगे से पढ़ने से जैसे होगा, पीछे से पढ़ने से भी सेम ही होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 लेटर वाला palindrome से किसी ने बोल दिया ANA, इस साइड से पढ़ने से भी ANA, इस साइड से पढ़ने से भी ANA, ये बोलते हैं palindrome, राइट? तो अगर मैं बोलता हूँ APPA अप्पा, इसको यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, सेम है, ठीक है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे ई चाहिए एक, हाँ,
तो पेलिंड्रोम 7 लेटर वाला बनाना है, पेलिंड्रोम 7 लेटर वाला बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 वाला। पहले क्वेश्चन देखो कि रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स आर अलाउड फॉर मोर देन 2 टाइम्स। पेलिंड्रोम होने से तो कोई कोई लेटर 2 बार आएगा ही, राइट, कोई कोई लेटर, कोई कोई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑड नंबर ऑफ पेलिंड्रोम होने से सेंट्रल वाला लेटर एक बार ही आता है, राइट, अदरवाइज बाकी एंड्स का 2 बार आएगा अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है। और रिपीटिशन अलाउ करेंगे तो सब लेटर्स क्या आएगा, 2 बार से ज्यादा भी आ सकता है। तो मैं फील करता हूं इस साइड से, देखो इसको फर्स्ट प्लेस मानता हूं, मेरे लिए कितना ओपन होगा, 26 ओपन होगा। अच्छा, पेलिंड्रोम जब आगे और पीछे दोनों साइड से पढ़ोगे सेम होना चाहिए, तो जब यहाँ पे तुमने एक लेटर को फिक्स कर दिया तो एक लेटर ही फिक्स हो जाएगा जो यहाँ पे आएगा। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप ओनली इन वन वेज, राइट। उसके बाद सेकेंड वाले प्लेस में रिपीटिशन अलाउ किया है, मतलब यहाँ जो लेटर यूज हुआ है यू कैन यूज इट हियर ऑल्सो। सो वंस यू यूज अ लेटर हियर, दैट सेम कैन बी, शुड बी यूज, नॉट कैन बी, शुड बी यूज हियर इन दिस प्लेस, क्योंकि उल्टा पढ़ने से भी सेम मिलना चाहिए। ये रहा सेकेंड प्लेस का कहानी। थर्ड प्लेस में भी 26 वेज में होगा और ये 1 वेज में, और बीच में है फोर्थ प्लेस, इसमें तुम 26 वेज में बना सकते हो। सो नंबर ऑफ पेलिंड्रोम्स कितना होगा इसमें, 26 टू द पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो जानने के लिए। हो गया कहानी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड फॉर मोर देन 2 टाइम्स। भाई इस बार जो नेसेसरी रिपीटिशन है पेलिंड्रोम बनने के लिए, उसको छोड़ के तुम रिपीटिशन नहीं कर सकते हो। तो पहले अगर इस जगह में तुमने 26 वेज में बैठाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 वेज आएगा, क्योंकि उल्टा पढ़ने से भी सेम आना चाहिए। मानो यहाँ पे तुमने बी को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे बी के ही जगह आना चाहिए, राइट। 26 में से 26 ऑप्शन यहाँ पे है तुम्हारे लिए, वेयरएज यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो फिक्स करोगे वही आना है, बिकॉज इट शुड बी अ पेलिंड्रोम। अच्छा, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड फॉर मोर देन 2 टाइम्स, मतलब यहाँ जो लेटर आएगा यहाँ तो आ ही गया, 2 बार हो ही गया। सो यहाँ पे 26 आएगा, 25 वेज में आएगा, क्योंकि 26 में से एक लेटर को यहाँ यूज कर दिया, मतलब यू आर लेफ्ट विथ 25 लेटर्स नाउ। सो दिस विल बी इन 1 वेज। फिर 24 होगा, ये 1 वे, और यहाँ पे होगा 23, राइट। सो टोटल नंबर विल बी हाउ मेनी, 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23, जो आएगा आंसर आएगा, इसको मैं नहीं करूंगा। दिस आंसर आई एम लिविंग फॉर यू टू वर्क आउट, राइट। देख लेना इसको, ये देखो। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? The next question is that 10 students are participating in a race. In how many ways the first 3 places can be occupied by winners? तो इसमें तुम्हें कॉमन सेंस अप्लाई करना है, इसमें रिपीटिशन तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा रिपीटिशन। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस में आएगा वो सेकंड में नहीं आएगा। तो तुम्हें देखना है ये 3 प्लेसेस में कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है। अगर फर्स्ट प्लेस पकड़े, 10 में से कोई भी फर्स्ट प्लेस में आ सकता है, राइट। इसमें अगर किसी ने फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया तो सेकंड प्लेस में वो नहीं आएगा, ऑब्वियसली 9 वेज पॉसिबल है, बाकी 9 का कोई ना कोई आएगा। और उसके बाद 2 जब चला गया उसके लिए कितना ऑप्शन, 8 ऑप्शन। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस इन व्हिच ये पोजीशंस कैप्चर होंगे कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8, दैट इज सॉरी 720 ways, 720 ways, right, 720 ways। प्लीज सी दिस इजी क्वेश्चन, but हम इसलिए लिए so that you can understand this। Here is your next question, right? It's a good question. If all the letters of the word tough are arranged in all possible ways, find the total number of words। Total number of words निकालना है तुम्हें, ठीक है। Solution देखो इसको, हम again I am telling you, I am not going to write the statement so that we can like increase the number of problem solution। So first of all, the given word is tough, you just write it। So number of letters कितना होगा, number of letters है 5 letters तुमने लिया है tough में, right। vowels के बारे में बात बोल रहा है तो number of vowels लिखो। number of vowels कितना होगा, 1 और 2 ही है vowels, right। So number of consonants क्या होगा,
कॉन्सोनेंट्स भी लिख लेते हैं, अगर कोई सवाल पूछेगा तो पूछेगा। अच्छा, तुम्हारे हाथ में आइटम है 5 और पांचों की 5 को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से करोगे? मीनिंग नहीं चाहिए वर्ड का, तो लेटर का लेंथ, वर्ड का लेंथ कितना होगा? 5 होगा। 5 में से तुम देखो कोई लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको उतना बार रिपीट कर सकते हो, बट यहाँ पे रिपीटेशन है नहीं। तो तुम अगर पहला प्लेस को फिलअप करना चाहते हो तो कितने तरीके से होगा? पांचों में से कोई एक लेटर डाल दो। बहुत बढ़िया, एक लेटर चला गया, तुम्हारे हाथ में 4 लेटर रहा। सेकेंड प्लेस में 4 वेज, थर्ड प्लेस में कितना वेज? 3 वेज, फोर्थ प्लेस में 2 वेज एंड लेफ्ट आउट में 1 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना होगा? 5 इंटू 4, राइट? लिख देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये 20 हुआ और ये 6 हुआ, टोटल 120 नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी देयर। ठीक है, बाय दिस। बहुत बढ़िया। नंबर 2 में आ जाते हैं अभी। नंबर 2 में जल्दी से आ जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स where vowels are always together. Vowels are always together. Please try to see this. We are going to use a different concept called grouping method, right? तो vowels को मुझे एक साथ रखना है, vowels को मुझे एक साथ रखना है। मेरे पास vowel कौन कौन है? ओ यू है। तो क्या करूंगा ना, ओ यू को एक लेटर बना दूंगा ऐसे टाइप करके। मान लो भाई एल, जो लेटर यहाँ नहीं है उसका नाम दे दो एल बोल के। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कंसीडरिंग बोथ द लेटर्स ओ एंड यू टू बी वन सिंगल लेटर, ये लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो इन दैट केस तुम्हारे हाथ में नंबर ऑफ लेटर्स कितना रहेगा? बोलो। नंबर ऑफ लेटर्स 5 होना चाहिए था, लेकिन तुमने तो भाई इन दोनों को चिपका दिया एक साथ रखने के लिए। अगर एक साथ रखने के लिए चिपका दिया तो तुम्हारे हाथ में काउंट करके देखो, 1 2 3 4 लेटर है। अब इन 4 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वेज में। मतलब यहाँ पे जब ये कितना वेज होगा? 12 टू 24। सो जो ये 24 वेज तुमने बनाया, इन वेज में तुमने क्या किया है? ओ और यू को गांठ लगा के एक लेटर मान लिया। तो ये तो गारंटी हो गया कि ये 24 वेज में दोनों लेटर ओ एन यू एक साथ रहेगा, मतलब दोनों भावेल एक साथ रहेगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन वो तो ये नहीं बोला था कि ओ और यू ही रहना चाहिए, ये तो उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जब ये वेज मिल गया फिर तुम्हारे पास और एक काम बचा है भाई। ये 24 वेज में से हर एक वे में तुम ये दोनों चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स हर एक वे के लिए फिर दो दो अरेंजमेंट निकलेंगे। सो टोटल कितना होगा भैया? टोटल नंबर ऑफ words ultimately will be 2 times 24, that is 48। ठीक है, प्लीज देख लो इसको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Okay, let us now do the third one, third part. Find the total number of words where all the vowels are not together. All the vowels are not together. यहाँ पे जो भी बोलो, लकीली 2 ही vowels का बात चल रहा है, राइट? ज्यादा vowels होने से ठीक था, लेकिन all the vowels are not together मतलब तुम बस कंडीशंस को देखो, एक आइडिया लगा लो। टोटल जो वर्ड है, टोटल वर्ड्स, वो जो 5 लेटर से टोटल वर्ड्स बना, इसमें 2 कैटेगरी का ही वर्ड रहेगा। कैसा टाइप का? वो सारे वर्ड जहां पे भावेल टुगेदर है, और अगर टुगेदर नहीं होगा तो भावेल्स नॉट टुगेदर, राइट? यही 2 कैटेगरी का बन सकता है। तो मैंने इसको निकाल लिया, दैट केम आउट एज 120। मैंने इसको निकाल लिया, vowels together, that is 48। so can you find this? This is nothing but 120 minus 48। जो भी होगा इसमें क्या आएगा? 72 आएगा। so 72 words are there where vowels will not be together। very nice, right? बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम देखो इमीडिएटली, ये हो गया। लास्ट वाला देखो, फोर्थ वाला। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर नो टू vowels आर टुगेदर। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ, इसमें 2 ही vowel है। अगर दोनों vowel को सेपरेट अगर कर ही दिए हो तो ऑटोमेटिकली दैट आंसर विल मैच विद दिस 72, राइट? अगर इसमें 2 से ज्यादा vowel होता तो ये आंसर मैच नहीं करता, वो हमें तरीके से निकालना पड़ता।
that question also I'll be picking up in near future. Now you come to the most important part of the question. That is the rank of the word. Rank, right? Rank of the word. Now please try to listen to me and try to understand first what does the word rank mean for a word. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पहले दे देता हूं, उसके बाद मैं उसको करूंगा, समझने का कोशिश करना है। तुम्हारे पास जो वर्ड है ये टफ है, टफ। तो मान लो दुनिया में तुम्हारे हाथ में ये 5 ही लेटर है और कोई लेटर नहीं है तुम्हारे पास। जैसे 26 अल्फाबेट्स है ना, तुम मान लो कि तुम्हारे पास में बस यही 5 अल्फाबेट है और ये 5 अल्फाबेट से तुम्हें एक दुनिया में डिक्शनरी बनाना है। और बनाने से उस डिक्शनरी में जैसे ऐसे वर्ड रहेगा तो ऑब्वियसली ये टफ नाम का वर्ड भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। तो वो वर्ड कहां पे आएगा, कौन सा प्लेसेस में, वही रैंक, वही रैंक, राइट। वैसे हमने ये पता लगा लिया है कि टफ का वर्ड से, लेटर से हम लोग 120 वर्ड बना सकते हैं। तो उन 120 वर्ड्स में से टफ वाला वर्ड लिस्ट में कौन सा नंबर में रहेगा, दैट इज द टोटल, सॉरी दैट इज द रैंक ऑफ द वर्ड टफ, यही निकालने के लिए पूछा, ठीक है। तो इन दैट केस यू मस्ट नो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तो पहले इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में डालो, पहले इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में डालो, पहले इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में डालो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जी सबसे पहले आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद टी आएगा एंड देन लास्ट में आएगा यू। घोटू, घोटू टर्म का एक वर्ड टाइप का बन गया। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब कहानी को बहुत तरीके से देखो, बहुत ही तरीके से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं जो वर्ड ऐसे 5 लेटर वाला बनाऊंगा डिक्शनरी में, क्योंकि मेरे पास ए है नहीं तो ए से कोई वर्ड नहीं बनेगा, बी है नहीं, बी से कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो सबसे पहला लेटर जो मैं यहाँ पे शुरू करूंगा कौन सा रहेगा भाई, जी रहेगा। बहुत बढ़िया, जी जब रहेगा बाकी लेटर्स को तुम अरेंज करके कितने वेज में लेटर बना सकते हो। मैंने डायरेक्ट इस बार 4 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि ये क्या होगा, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वे, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। हैव यू अंडरस्टूड दिस? स्वर्णव, ओके। सो नाउ मैंने क्या किया, डिक्शनरी का पहला सेट ऑफ वर्ड्स लिखना शुरू किया, जी से शुरू कर दिया। तो मेरे पास कितना वर्ड लिखा हुआ, 24 मैंने लिख दिया भाई, जी से खत्म होने वाला, शुरू होने वाला। बहुत बढ़िया। अब लेता हूं मैं जी के बाद, जब जी का वर्ड सारे खत्म हो गया भाई, 8 से शुरू होने वाला वर्ड लेता हूं, राइट। 8 से शुरू होने वाला वर्ड कितना होगा, फिर 24। अच्छा, फिर किससे शुरू होने वाला लेना पड़ेगा, ओ से। ओ से भी ऐसे ही 4 फैक्टोरियल होगा, टोटल 24 वर्ड। मतलब अभी तक मैंने 72 वर्ड लिख चुका हूं जो जी से शुरू हुआ, एच से शुरू हुआ, ओ से शुरू हुआ। नेक्स्ट जो शुरू होने वाला है अल्फाबेटिकल में आएगा टी से शुरू होने वाला। लोचा अभी यहाँ पे शुरू हो गया, क्योंकि तुम्हारा जो वर्ड टफ है वो टी का कैटेगरी में है, इसीलिए इसमें आएगा। तो तुम अंधाधुन अभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, अंधाधुन अभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, उसके लिए तुमको अभी फिर देखना पड़ेगा वर्ड में नेक्स्ट में क्या आना चाहिए। नेक्स्ट में अगर टफ वर्ड बोलोगे तो ओ आना चाहिए, लेकिन क्या ओ से पहले यहाँ पे डिक्शनरी के हिसाब से कोई लेटर आएगा, जरूर आएगा भाई। टी के बाद तुम जी बैठा सकते हो एक बार, और एक बार एच बैठा सकते हो, सो दैट टी जी समथिंग एंड टी एच समथिंग विल कम बिफोर टफ। तो ये कितने तरीके से बनेगा, अभी 3 फैक्टोरियल तरीके से, जो कि 6 वेज, और ये 6 हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में भैया, इसमें आ जाएगा ओ, टी तो है ही यहाँ पे, आ गया ओ। ओ आने के बाद फिर तुम्हें देखना है नेक्स्ट वाला में क्या बैठेगा, टी ओ यू है। अच्छा, यू से पहले तो तुम्हें 2 वैल्यूज मिल ही जाएगा। कौन कौन सा मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा, यू से पहले। अभी देखो यहाँ पे काट के जा सकते हो तुम, अभी तक किसको यूज किया, जी, जी एच को,
नहीं नहीं सॉरी, टी और ओ को यूज किया यहाँ पे, तो इसके बाद एच जी डाल सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एच डाल सकते हो, राइट। उसके नेक्स्ट में जब आएगा इधर यू आएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। तो जी तक लिखने से, टी ओ जी तक लिखने से यहाँ पे और बाकी दो लेटर्स को टू वेज में अरेंज कर सकते हो, इन लेटर्स को टू वेज में कर सकते हो। तुम लिख भी सकते हो, ये दोनों लेटर लिखना चाहते हो तो लिख दो। उसके बाद जब जी और एच से खत्म हुआ, तो तुम्हारे पास कौन सा आएगा, टी ओ आई एंड देन यू। इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद अल्फाबेटिकली देखो भाई, जी आना चाहिए, उसके बाद एच, मतलब नेक्स्ट वर्ड ही जो होगा यही जी एच, मतलब टफ वर्ड होगा, मतलब ये वन तरीके से। तो तुम ये अगर ऐड करोगे अभी, इससे तुम्हें क्या मिला, वो सारे वर्ड्स यहां तक, वो सारे वर्ड्स जो वर्ड्स तुम लिख चुके हो अप टू द वर्ड टफ, तो उसमें एक ज्वाइन कर देने का मतलब है टफ का रैंक मिल गया। सो कितना हुआ ये हो गया 3 24 मतलब 72। दिस इज गोइंग टू गिव यू 12 एंड दिस इज 4। सो 72 प्लस ये हो जाएगा 16, 78, 78, 88, 88 प्लस 1, 89, राइट। तुम्हारा लिस्ट में रैंक ऑफ द वर्ड टफ कितना होगा, 89, मतलब 89th word is tough, 89th word is tough. Please say this. So here is your next question, here is your next question। क्या बोला है देखो, how many different words with or without meaning can be formed by using the word miracle। miracle का जो लेटर्स है, इनका लेटर्स को यूज करके तुम कितना वर्ड बना सकते हो, और उसके बाद कंडीशन दिया है, इफ vowels occupy the odd places, vowels occupy the even places, and no two, sorry, two terminal places are vowels। ठीक है, टर्मिनल मतलब ends, रिमेंबरिंग ends के बारे में बात बोल रहा है वो लोग। ठीक है, तो मैं पेज को ऐड कर लेता हूं, बस आई कम टू दैट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ लेटर्स लिखो, लेटर्स वर्ड तो लिख ही दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स तुम्हारे हाथ में है, और सारे लेटर्स को तुम्हें अरेंज करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बोल के जगह है। बहुत बढ़िया। अब देखो इन 7 जगह में से ऑड प्लेसेस कौन सा है भाई, मैं सिर्फ ऑड को मार्क कर रहा हूँ, राइट। 1 3 5 एंड 7 प्लेसेस, 4 प्लेस ऐसा है जो ऑड है, और तुम्हें उसमें भावेल को ठुसाना है, पहली बात, राइट। तो तुम देखो भावेल कौन कौन सा है, एक तो है आई, एक हो गया ई ए, और एक हो गया ई। क्या और कोई भावेल है आई ए ई, नहीं है, ठीक है, 3 भावेल्स। तो तुम देखो 4 प्लेसेस है, देयर आर 4 प्लेसेस, राइट, 4 ऑड प्लेसेस। तो इसमें तुम्हें अभी भावेल को ठुसाना है, राइट, यू हैव टू कीप द भावेल्स इन द ऑड प्लेसेस, राइट। ओके, तो तुम पहले भावेल को उठा लो, पहले भावेल को उठा लो, कोई भी एक भावेल, राइट। तुम्हारे हाथ में 3 भावेल हैं, 3 भावेल में से कोई भी एक भावेल को उठा लो पहले, राइट। तो कोई भी एक भावेल को उठाने के बाद इन 4 प्लेसेस में से उस भावेल के लिए कितना जगह बचेगा, 4 वेज। तुम कहीं ना कहीं 4 वेज में रख दोगे, राइट, भावेल्स को कहीं ना कहीं 4 वेज में वहां पे रख दोगे। बहुत बढ़िया। एक भावेल को, रिमेंबर एक के बारे में बोल रहा हूँ, आई को ही पकड़ लो, इधर 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 या कहीं इधर बैठा दो, ठीक है। फिर बचा है सेकेंड वाला, सेकेंड वाला ले लो, सेकेंड के लिए कितना ऑप्शन बनेगा, 3 ऑप्शन। थर्ड के लिए 2 खाली रहेगा, 2 ऑप्शन। तो तुम 3 उन भावेल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो इन जगह पे, 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 12 टू 24 वेज, राइट, 24 वेज। अब कहानी को धीरे से देखना, बहुत तरीके से देखना। तुमने आई को उठा दिया, 4 में से कहीं रख दिया, मान लो आई को इधर रख दिया,
दूसरे के लिए ऑप्शन बना, ए को बना यहाँ रखा और ई को इधर रख दिया, क्या इसमें सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे या फिर हमें और कुछ करना पड़ेगा? ये सोचने का बात है, राइट? इसमें बिल्कुल कोई सोचने का बात नहीं, क्योंकि तुमने आई को जब 4 प्लेसेस का ऑप्शन दिया था, तो आई इधर भी हो सकता है, 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 मतलब 4 में से कहीं भी हो सकता है। मतलब तुमने आई को ऑल पॉसिबल ऑप्शंस तुमने दे दिया है, तो बिकॉज ऑफ दैट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आई सर आई को यहाँ बैठाए तो इधर आएगा या नहीं, सब चांसेस है, राइट? ऑल पॉसिबल चांसेस विल बी इंक्लूडेड हियर। सो वावेल्स को हम लोग ऑड प्लेसेस में इतनी तरीके से अरेंज करेंगे। करने के बाद इवन प्लेस कितना बचा है? 3 प्लेस और एक लेफ्ट आउट प्लेस बचेगा भाई। टोटल 7 प्लेस था ना, 7 प्लेस में तो तुमने 3 को ही अरेंज किया, बचेगा 4, और तुम्हारे हाथ में भी लेटर 4 है, तो 4 प्लेस में 4 लेटर्स को कैसे अरेंज करोगे? पहला वाला 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज और 1 वेज, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाओगे। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी हाउ मच? 4 फैक्टोरियल इनटू दिस, मतलब 24 इंटू 24, दैट इज कितना होता है रे? 576 होता है, 576 होता है, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा ऑड प्लेसेस वाला कहानी। अच्छा, इवन वाला तो इससे आसान हो जाएगा। इससे आसान क्यों होगा भाई? इवन तो 3 ही प्लेस है, राइट? इवन प्लेसेस है 2, 4 एंड 6। तो पहला वाला वोवेल के लिए जो ऑप्शन बनेगा, पहला वाला वोवेल के लिए 3 ऑप्शंस, सेकेंड वाले के लिए 2 जगह रहेगा, एक के लिए इतना, और बाकी 4 के लिए तो कहानी उसी बराबर है। तो 6 इंटू 24, राइट? 6 इंटू 24, सो 24 इंटू 6 कितना होगा? 144, राइट? 144, ठीक है। सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाला देखो, इफ 2 टर्मिनल प्लेसेस आर वावेल्स, बिगिनिंग और एंडिंग में तुम्हें वावेल को रखना है, ये तुम्हारे हाथ में इंस्ट्रक्शन है। तो ये एक प्लेस भावल में होगा, ये एक प्लेस भावल में। अच्छा, तुम्हारे हाथ में भावल कितना है भैया? 3 है, तो इससे शुरू करोगे तो ये 3 प्लेस में से एक आएगा, तो 3 ऑप्शन तुम्हारा है भावल। अच्छा, एक भावल यहाँ पे यूज कर दिया, मतलब इसके लिए 2 ऑप्शन बचेगा। तो मतलब एंड्स कैन बी फिल्ड अप इन हाउ मेनी वेज? 3 इंटू 2 वेज, 3 इंटू 2 वेज, रिपीटिशन नहीं होने के कारण 3 इंटू 2 हुआ। बहुत बढ़िया। बाकी बचा है 5 प्लेस, तो 5 प्लेस को रिमेनिंग 5 लेटर्स में कितने तरीके से यूज करोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। सो दिस इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल विल बी गिविंग यू व्हाट? 120 इंटू 6, 720। मतलब भावेल एंड्स को भावेल को एंड्स में रखते हुए you will be getting 720 such words that can be formed with the help of the letter of the word. क्या है word? Miracle. Please see this, right? So here is this question, very very important, common sense वाला question है, बहुत बढ़िया question है, इससे बहुत सारे कंसेप्ट निकलेंगे। I am going to discuss those questions here. तो तुम्हें बोला गया कि एक रूम में 20 वर्किंग बल्ब है, ऐसे करके उनका स्विच लगा के रखा है बोर्ड में, राइट? कहीं भी बोर्ड में ऐसे 20 बल्ब का 20 स्विच है, और बोला है हर स्विच का 2-2 मोड है। 2-2 मोड मतलब ऑन में रह सकता है या फिर ऑफ में रह सकता है। ये 20 स्विचेस है। तो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने तरीके से तुम रूम को इल्यूमिनेट कर सकते हो। इल्यूमिनेट मतलब लाइट अप कर सकते हो। तो भाई एक लाइट जलने से भी तो लाइट होगा, 2 जलने से भी होगा, या फिर सारे जलो। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि एट ए टाइम सारे लाइट्स जो है ना वो ऑफ नहीं रहना चाहिए। अगर ऑफ रहेगा तो लाइट मतलब रूम विल नॉट बी इल्यूमिनेटेड, रोशनी नहीं होगा, राइट? अच्छा, इल्यूमिनेटेड ये आई होगा ना, मैंने ई लगा दिया, इल्यूमिनेटेड, सॉरी। ओके, वेरी फाइन। सो हम पहले देख तो ले कि स्विच का पोजीशन क्या है। मेरे पास 20 स्विचेस है, मैं पहला स्विच तक गया, मेरे पास कितना ऑप्शन बनेगा भाई? या तो उसको ऑन रखूंगा या तो ऑफ रखूंगा, 2 ऑप्शंस।
अच्छा, इसको जो भी किया, ऑन किया या ऑफ किया, सेकेंड वाले स्विच में गया, मेरे पास कितना ऑप्शन बचेगा? फिर दो ऑप्शन, इसको ऑन रखूंगा या फिर इसको ऑफ रखूंगा। फिर इसके बाद तीसरे में गया, दो ऑप्शन, चौथे में गया, दो ऑप्शन, ऐसे जाके 20th वाला में गया, फिर दो ऑप्शन। तो इसका मतलब मैं सारे स्विच को ऑन या ऑफ पोजीशन में जैसे भी रखूं, कितने टोटल डिफरेंट वेज में मैं रख सकता हूं? 2 to the power 20 वेज, राइट। ये पॉसिबल वेज है जिसमें मैं स्विच का ऑन या ऑफ पोजीशन में रख सकूं 20 स्विच को। अच्छा, फिर ध्यान लगाओ तुम भाई, इनमें से ही ऐसा कुछ सिचुएशंस होगा जिसमें सारे स्विच ऑफ है। मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जब सारे लाइट्स बंद है, बस वो एक ही बार आएगा, राइट। तो टोटल जितना है ऑप्शन, उनमें से अगर एक को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा मुझे? वो जो सारे स्विचेस बंद है ना लाइट, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचेगा इसमें कितना वेज रहेगा? चाहे जितना भी वेज रहे, क्या मतलब है, बट इट इज गारंटीड दैट एटलीस्ट वन बल्ब विल बी इन ऑन पोजीशन। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच आई कैन इल्यूमिनेट द रूम विल बी 2 to the power 20 minus 1। प्लीज सी दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन ए क्वेश्चन पेपर देयर आर 30 क्वेश्चंस, जिसमें दो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, मतलब ट्रू फॉल्स लिखना है, राइट। तो मेरे पास कितना ऑप्शन होगा डिफरेंट वेज में आंसर करने? तो देखो, पहला क्वेश्चन को ले लो, 30 क्वेश्चन है हाथ में, पहला क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं? 2 वेज। इसका जो भी आंसर हो, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इसको सबसेक्वेंटली आंसर करोगे टू, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज। सिमिलरली दोनों का आंसर के बाद थर्ड वाला 2 वेज। तो ऐसे करके हर क्वेश्चन के लिए 2 वेज पॉसिबल है। सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर्स विल बी हाउ मच? 2 to the power 30। ये रहा पहला वाला पार्ट का आंसर। तो अगर तुम ढूंढोगे कि मैं अलग अलग आंसर्स का स्टाइल लिखना चाहता हूं, तो फिर तुम्हें 2 to the power 30 नंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगा, जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, चल गया कहानी। नेक्स्ट पूछा है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव एटलीस्ट वन आंसर करेक्ट? भाई सोचो, दिमाग लगाओ, एटलीस्ट वन आंसर करेक्ट का मतलब है सारे गलत नहीं। तो सारे गलत होने का चांस कितना है भाई? एक ही होगा ना, राइट, बिकॉज दो दो ऑप्शन है। तुम जब गलत ऑप्शन सारे में चूज करोगे, वो तो एक पॉसिबिलिटी ही है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ऑल आंसर्स टू बी रॉन्ग विल बी ओनली वन वे। सो उस वे को हटा देने से जितना बचेगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, कम से कम एक आंसर करेक्ट। तो सेकेंड वाला मिल गया। अच्छा, कम से कम एक आंसर तो रॉन्ग हो। अच्छा, ये सेम आंसर ही होगा। उल्टा मैंने पूछा भाई, कम से कम एक आंसर रॉन्ग होने का मतलब है टोटल में से जिस पेपर में सारे आंसर करेक्ट किया है वो नहीं चाहिए हमको, राइट। तो सारे आंसर करेक्ट कितने तरीके से हो सकता है? एक ही तरीके से, उसको निकाल दो। अगर उसको निकाल दोगे तो जो बचेगा उसमें क्या होगा? मिनिमम एक क्वेश्चन तो रॉन्ग होगा ही, राइट। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आज यहां पे ही खत्म करते हैं।